Good morning, students. Welcome back to the class 11, subject business study. As we have completed our business services chapter in last video itself, certain insurance notes are pending. It will be sent it to you sooner. And today we are going with the chapter number 5, emerging modes of business. This chapter is little bit shorter, small chapter it is there, and very interesting also because here it is the transactions which are being done in current situations. This chapter is very much helpful for you if you are going for the work in KPOs or BPOs, and you should know that e-business is also a part of market now, as everywhere e-banking, e-marketing, e-business is conducted. So today we are going with the chapter emerging modes of business. In that I have a notes already. I'll go with the certain topics like e-business, what is e-business, and why e-business is necessary now, and why e-commerce is necessary. Then we will go with the scope of e-business, and then later on we will carry forward with the topic known as benefits of e-business, and then in next video we will carry forward so on. So let's begin with the first topic as e-business and e-commerce. The conduct of industry, trade and commerce use the computer network by defining as e-business. E-business is nothing but it is related to a computer work. Whatever the transactions, whatever the ups and downs you are seeing is related to computer network is considered as e-business. आपको कुछ परचेज करना हो, कुछ सेल करना हो, तो पहले फिजिकली आप जाते थे, ट्रेडिशनल मेथड में आप वहाँ पे जाके प्रोडक्ट को चेक करते थे। लेकिन आज क्या हो गया है, आज अगर आपको कुछ खरीदना है या बेचना है तो आप एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू आप वो प्रोडक्ट को आसानी से बेच सकते हो, उसके अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन आप रख सकते हो। इसी को हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्क से आप एक जगह से बैठ के पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कोई भी चीज़ प्रोडक्ट मंगा सकते हो। इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, तो बिजनेस में होता क्या है, बिजनेस में विल परचेज मशीनरीज, गुड्स, रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो ये भी हो सकता है ई बिजनेस के अंदर। Next part is e-business is more elaborated term and comprise various business transactions and functions conducting electronical including the most popular medium of a tradition is called as e-commerce. आप ई-बिजनेस को ई-कॉमर्स से भी जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली कहा गया है जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है या जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है वो सारा का सारा आप एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह परचेज कर सकते हो। तो ई बिजनेस बहुत आसान हो जाता है। Next part is e-commerce covers the firm interaction with its customer and suppliers over the internet. ई-कॉमर्स जो है वो कस्टमर्स के साथ में अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सोर्स है। इसके अंदर हम लोग कस्टमर्स, सप्लायर्स के साथ में कांटेक्ट में रहते हैं, और कांटेक्ट में रहने के बाद में उनके साथ हम प्रोडक्ट डीलिंग करते हैं, परचेजिंग, सेलिंग, एवरीथिंग इज बीन डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। E-business includes not only e-commerce but also other electronic conducted business functions such as promotion, inventory management, product development, accounting and finance and human resources. E-business सिर्फ और सिर्फ e-commerce तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे कस्टमर्स एंड सप्लायर्स तक लिमिटेड नहीं है। ई-कॉमर्स डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के अंदर भी इन्वॉल्व है, जैसे प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में ई बिजनेस कैसे काम करता है? प्रोडक्शन के अंदर नॉर्मली ये चेक किया जाता है कि आपने कितना प्रोड्यूस किया है, कैसे प्रोड्यूस किया है और कब प्रोड्यूस किया है। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट को आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितना स्टॉक इन है, कितना स्टॉक आउट है, कितने रॉ मटेरियल्स है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस है। आप ये सब चीज़ें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कर सकते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी ई बिजनेस हेल्पफुल है। अकाउंटिंग के लिए आपके लिए ई बिजनेस हेल्पफुल है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सिलेक्शन, स्टाफिंग, ये सब चीज़ के लिए भी आपके लिए ई बिजनेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टुडे वी आर गोइंग विद द सेकंड पॉइंट एज अ स्कोप ऑफ ई बिजनेस। अब जब हम लोग स्कोप ऑफ ई बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सब चीज़ आती है।
तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर ई बिजनेस के ये 4 फंक्शंस अगर आपको आ जाते हैं तो आगे का कॉन्सेप्ट भी इजी हो जाएगा। So let's begin with the scope of e-business. In scope of e-business, it has been mentioned on the basis of business function, production, finance, market, and personal administration, as well as managerial activities like planning, organizing, controlling, can carry out over a computer network. प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा अगर आप मैनेजरल एक्टिविटी को भी ऐड करते हैं इंटरनेट के साथ में, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, तो आप कंप्यूटर नेटवर्क से बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो on the basis of parties involved in electronic transactions. डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं और अलग अलग तरीके हैं। तो मैं इसको आपको वन बाय वन एक्सप्लेन जरूर करूंगा, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। B2B, B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पर इंटरेक्शन होता है एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच में, यहाँ पे कम्युनिकेशन किया जाता है, यहाँ पे सेल्स एंड परचेज किया जाता है एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच में। Next part is business to B2C. B2C is business to customer. यहाँ पे one end to another end. यहाँ पे क्लियरली बोला गया है बिजनेस से ही सीधा प्रोडक्ट आप बेच देते हो कस्टमर को। Direct selling to the customer. It is an interaction between customers and business. Next is intra-B or a firm internal process. इसके बाद में एक पॉइंट है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में ये 3 पॉइंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। C2C जो है वो कस्टमर टू कस्टमर, वो रेगुलर बिजनेस नहीं है, वो वन एंड टू अनदर, जब ज़रूरत पड़ती है तब आप उसको यूज़ करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक B2B. Here B2B is considered as business to business. Both the parties involved in e-commerce transactions are business formed and hence the name is B2B. यहाँ पे दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो दोनों ई कॉमर्स के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं, इसलिए इन दोनों को हमने B2B में कन्वर्ट किया हुआ है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और डिलीवरी, delivering value requires a business to interact with a number of other business firms, which may be supplier or a vendor of giving drives inputs, or else they may be a part of a channel through which the firm distributes its product to the customer. यहाँ पर B2B का मतलब ऐसा है कि आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तक प्रोडक्ट बेच सकते हो या डिलीवरी कर सकते हो, या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं प्रोड्यूसर, मिडलमैन एंड कस्टमर। तो यहाँ पे मिडलमैन जो है वो आपका वेंडर भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, वो एक तरह का चैनल हो सकता है जो आपके प्रोडक्ट को बेचता है कस्टमर को। तो ये भी B2B का एक पार्ट है। Historically, a term e-commerce originally means a facilitation of B2B transaction using electronic data interchange (EDI) technology to send and receive commercial documents like purchase order or invoice. B2B जो है वो नॉर्मली एक ई-कॉमर्स ऑर्गेनाइज फैसिलिटीज है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, जहाँ पे आप ऑर्डर्स लेते हो, परचेज ऑर्डर लेते हो, इनवॉइस सेंड करते हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट require large number of components which is manufactured by some other. Computers are used to place order, monitoring production, delivery of component and making payments. यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट की ज़रूरत है, और वो प्रोडक्ट्स जो है वो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज बनाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ में, और फिर उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि वो डिलीवरी कब तक आएगी, कैसे आएगी, और पेमेंट हम लोग कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेट बैंकिंग। तो ये सब चीज़ B2B में आती है। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस।
यहाँ पे प्रोड्यूसर भी बिजनेस कर रहा है, होलसेलर भी बिजनेस कर रहा है, रिटेलर भी बिजनेस कर रहा है और वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये B2B हो सकता है। अब हम लोग आते हैं B2C, बिजनेस टू कस्टमर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस टू कस्टमर, यहाँ पे ट्रांजैक्शन वन एंड टू अनदर एंड होता है। बिजनेस एक एंड है और कस्टमर अनदर एंड है। यहाँ पे आप डायरेक्टली एक प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो डायरेक्ट सेकंड प्रोडक्ट सेकंड एंड तक। It entitles a wide gamut of market activities such as identifying activities, promotion, and sometimes even delivery of products that are carried out online. यहाँ पर B2C के अंदर आप प्रोडक्ट एक्टिविटी देख सकते हो, प्रमोशन देख सकते हो, प्रोडक्ट की नई आइडेंटिफिकेशन देख सकते हो, फीचर्स देख सकते हो एज एन कस्टमर। बिजनेस में बिजनेसमैन ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज आपको देता है उनके वेबसाइट पर। आप यहाँ से प्रोडक्ट की डिलीवरी भी चेक कर सकते हो कि हाँ डिलीवरी कितने टाइम में होगी, कैसे होगी, यहाँ पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। It enables a business to be in touch with the customer all around the clock basis, which helps in knowing the customer satisfaction level. हम इंटरनेट के थ्रू कस्टमर के साथ में 24/7 ट्रैक रह सकते हैं या कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर 24/7 कोई भी टाइम में कभी भी ऑर्डर कर सकता है, कोई भी कमेंट कर सकता है, कभी भी सजेशन दे सकता है। यहाँ पे एटीएम का एग्जाम्पल आपको दिया। फॉर एग्जाम्पल एटीएम स्पीड्स ऑफ विड्रॉवल ऑफ मनी। पहले के दौर में ट्रेडिशनल मेथड में अगर आपको मनी निकालना होता था, इवन इफ फॉर 2000 रुपीज और 3000 रुपीज, यू हैव टू मेक अ ह्यूज क्यू and then the number will come, and at the time of number you go to that counter, you have to give a certain coin and then the amount will be given to you. Now with the help of ATM, you should not be in the queue for a long period of time. Just swipe the card and you will withdraw the money. Today is very fastest mode we are using as an ATM, like debit card or credit card for withdrawing of money. Earlier phases you have to make a huge queue for 1000 rupees also. Now today it's very easy. If you want 1000 rupees, 10,000 rupees, 20,000 rupees, just swipe the card, you will receive a money. It is considered as B2C. Direct end. Bank, HDFC Bank or Baroda, Bank of Baroda or SBI Bank. Every bank has their own ATM machines. You go there, just swipe it, you withdraw your money. Then new facilities are been also been added, like depositing money with the machines, and it was been directly transferred to your account. It is possible now because of companies' efforts. It is customer end. Directly customer has to put the money, it will automatically accept it, and the entry will be passed in your books. Now it is also been there, like passbook facilities is also been provided by B2C commerce. It is there. Lot of examples I can give you, but here it is ATM. We are talking about bank, and in bank I have given you three topics over here. Now next part is intra B commerce. This topic is little bit important and many of the people doesn't understand this. Party involves in the electronic transactions and for within a given business firm. यहाँ पे पार्टीज जो है या बिजनेस पार्टीज जो होती हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक एंड से दूसरे एंड के बीच में यहाँ पर कम्युनिकेशन होती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, जब मैं वो एग्जाम्पल आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। It is a large it is largely due to use of intra-e-commerce that today it has become possible for the firm to go into its flexible manufacturing using a computer network, making it possible for the marketing department to interact constantly with the production department and get the customer product made as per the requirement of an individual customer. आज के इसमें विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग हम एक जगह से बैठ के दूसरी जगह के डिपार्टमेंट के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन भी है, फाइनेंस भी है, फाइनेंस भी है, सेल्स भी है,
रॉ मटेरियल परचेज करने का डिपार्टमेंट भी है, परचेज डिपार्टमेंट भी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ में विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकते हैं वेरी इजीली। दो अलग अलग एंड में बैठते हैं, एक राइट हैंड साइड बैठ रहा है तो दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में बैठ रहा है, और दोनों का डिपार्टमेंट भी अलग है, दोनों के एरियाज भी अलग अलग है, लेकिन वो एक बिजनेस फॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कम्युनिकेट करके अपना काम ऑन स्पॉट करवा सकते हो, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन को इम्पोर्टेंस देते हुए, टाइम रिड्यूस करते हुए सारा का सारा प्रोडक्शन वो ऑन टाइम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वापस से एक जगह मीटिंग पे इकट्ठा होंगे, फिर इनके बीच में डिबेट होगी, डिबेट होने के बाद में फिर वो कम्युनिकेट करेंगे, फिर प्रोडक्शन बनाएंगे, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर के थ्रू मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाती है। Here, one point is that virtual प्राइवेट नेटवर्क VPN, VPN टेक्नोलॉजी जो है वो ऑफिस के लिए यूज की जाती है। यहाँ पे ऑफिस के अंदर हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी वुड मीन दैट एम्प्लॉय डू नॉट हैव टू कम टू ऑफिस, instead in the way the office goes to them, and they can work from wherever they are and they are own speed at the time convenience. Meeting can be held online via teleconference or video conference. फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी के साथ में कम्युनिकेट करना है बैंगलोर के अंदर, ठीक है, मैं अभी तो यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस आई कैन कम्युनिकेट इन बैंगलोर विद द वीडियो कॉन्फ्रेंस सेम नंबर। We will have a meeting in laptop, we can go with the laptop communication, we can go with the projectors interview with the help of VPN। आजकल तो इंटरव्यू भी जो होता है वो लैपटॉप के थ्रू हो जाता है, VPN के थ्रू हो जाता है। उसके अलावा बाद में कंटिन्यूस प्रोसेस भी आप कर सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंस नॉर्मली अब आपको इतना खर्चा करके वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप यहीं से बैठ के बैंगलोर में कम्युनिकेट कर सकते हो। दिल्ली कम्युनिकेट करना है कर सकता हूँ मैं, मुझे लंदन कम्युनिकेट करना है, विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप आई कैन डू दैट। तो ये सब पॉसिबल है आज के इसमें विद द हेल्प ऑफ VPN। नेक्स्ट पार्ट इज C2C। मैंने कहा था कि C2C भी एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कस्टमर टू कस्टमर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बिजनेस जो स्टार्ट होता है वो एक कस्टमर से ही स्टार्ट होता है, और खत्म भी जो हो रहा है वो एक कस्टमर के साथ में ही हो रहा है। दिस टाइप ऑफ कॉमर्स इज बेस्ट सूट फॉर डीलिंग इन गुड्स इन वेयर देयर इज नो एस्टैब्लिश्ड मार्केट मैकेनिज्म इज देयर। यहाँ पे आपको कोई मार्केट स्टैब्लिशमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्विकर, OLX, eBay, ये सब एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप गुड्स परचेज भी करते हो और सेल भी कर सकते हो वेरी इजीली। और यहाँ पे पेमेंट भी अगर आपको करना है तो आप पेपाल का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। Another technology that has been emerged by the supporting C2C activity is that of the payment intermediary. For example, PayPal. Instead of purchasing items directly from an unknown source, untrusted seller, the buyer can instead send the money to PayPal. From there, PayPal notifies the seller that they will hold the money for them until the goods has been shipped and accepted by the buyer. पेपाल एक ऐसी सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। नॉर्मली इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा फेमस नहीं है पेपाल, लेकिन आउट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस है पेपाल। पेपाल क्या करता है, नॉर्मली अगर आपको कुछ परचेज करना है और आप अननोन साइट पे चले गए और उस सेलर का आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, तो आपने क्या किया, आपका जो मनी है वो पेपाल को ट्रांसफ़र कर दिया। पेपाल क्या करेगा, वो मनी डायरेक्ट सेलर को सेंड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अपने पास रिजर्व करके रखेगा। आपको जब तक आपका प्रोडक्ट डिलीवर ना हो जाए, आप एक्सेप्ट ना कर लो, जब तक आपके पास एक्सेप्ट डिलीवर नहीं आता तब तक पेमेंट वो नहीं होगा। तो पेपाल इस तरह की सर्विसेज दे सकता है कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स के अंदर। Why the e-commerce is beneficial? Today we will see the advantages also. We are having 6 points over here. First is easy to set up. आप एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेट की ज़रूरत है, और आप घर पे बैठे बैठे आप ई-कॉमर्स या ई बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अमेजोन का स्टार्टअप कैसे हुआ था, एक रूम से ही तो स्टार्ट हुआ था अमेजोन।
तो उसने क्या किया था, एक कंप्यूटर रखा था, एक इंटरनेट कनेक्शन रखी थी और एक वेब पेज बनाया था जिस पे लोग इंटरेक्ट करते थे। एक सॉफ्टवेयर की जरूरत थी उसको, तो उसने सॉफ्टवेयर बनाया था। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आज अमेजोन कहाँ से कहाँ पहुंच गया, चीपर देन द ट्रेडिशनल बिजनेस। क्योंकि ई बिजनेस जो है ना वो कहीं पे भी कैसे भी स्टार्ट हो सकता है। तो इंटरनेट कॉस्ट आपको लेना है, कंप्यूटर कॉस्ट लेना है और सॉफ्टवेयर का कॉस्ट लेना है। वैसे अगर आप फिजिकल बिजनेस बनाते हो तो आपको लैक्स ऑफ रुपीस इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो वो लैक्स ऑफ रुपीस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ई बिजनेस के कंपेयर में। नो जोग्राफिकल बाउंड्रीज, पॉइंट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप इंटरनेट के थ्रू कहीं पे भी किधर भी कैसे भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो या सेल कर सकते हो। और यहाँ पर ग्लोबली आजकल बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए जाते हैं। यहाँ पे आपके पास पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई चॉइसेस आपके पास अवेलेबल होते हैं आज। फ्लेक्सिबल बिजनेस आवर्स, पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम तक काम कर सकते थे, तो शिफ्ट रोटेशन होती थी। लेकिन ये जो ई बिजनेस है इसको हम लोग कैसे भी कभी भी इंटरनेट के थ्रू कैसे भी इसको डील कर सकते हैं। सिंस इंटरनेट इज ऑलवेज अवेलेबल, ई बैंकिंग ब्रेक्स डाउन द टाइम बैरियर दैट लोकेशन बेस्ड बिजनेस एनकाउंटर। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन 24/7 चलता है, इसलिए यहाँ पे टाइम का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको प्रोडक्ट मिला, आपने खरीद लिया, आपको प्रोडक्ट बेचना है, बेच दिया। स्पीड एंड एफिशिएंसी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड होता है और इफेक्टिव होता है। क्योंकि यहाँ पर आप पेमेंट प्रोसेस भी जो करते हो वो ऑनलाइन करते हो, तो ऑनलाइन से पेमेंट भी बहुत जल्दी रिसीव हो जाती है, और रिसीव होती है तो प्रोडक्ट भी तुरंत आपका बिक भी जाता है। और यहाँ पर क्या है कि ह्यूमन एफर्ट जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है। मूवमेंट टूवर्ड्स द पेपरलेस सोसाइटी, इंटरनेट के थ्रू आज हम लोग मेजर काम कर लेते हैं। एक ईमेल डाल दिया, काम हो गया। ई कॉमर्स के अंदर आप एक इनवॉइस भेज सकते हो या ऑर्डर नंबर भेज सकते हो, अप्रूवल ले सकते हो, लाइसेंस ले सकते हो। आजकल इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ईजिली हो जाती हैं। ई बिजनेस का ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हर चीज़ ईजिली हो जाती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। लाइसेंस लेना है तो भी इंटरनेट से हो जाता है। ये कुछ बेनिफिट्स हमने आज देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिमिटेशंस देखेंगे और दूसरे पॉइंट्स भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।